Hello students, welcome to English grammar class. Our today's lesson is countable nouns and uncountable nouns. Students, you already know what are nouns. Noun is a naming word. So you are well aware with noun. So I shall today teach you countable nouns and uncountable nouns. The word countable means that can be counted. Countable means that can be counted. You know counting 1 2 3 4 5 6 7, that is called counting. Uncountable is opposite to countable. What does it mean? It means that cannot be counted. The countable means that can be counted and uncountable means that cannot be counted. So before I teach you what does countable noun mean or what does an uncountable noun mean, first of all look at the following sentences. Okay, here 8 sentences are given. Okay, so I am reading them one by one. I am reading a book. Iron is a useful metal. Snowy is his pet dog. She has long hair. Milk is good for health. The door is closed. I bought a kilo of sugar. Children play with toys. So these are 8 sentences. Now in these 8 sentences you see that a few words are highlighted with blue color and a few words are highlighted with green color. Now look at the word book. I am reading a book. Book. We can count books. 1 book, 2 book, 3 book, 4 books. So book is a countable noun. We can count. If there are lots of books lying on the floor, you can count them. You can easily count them. So because books can be counted, so book is a countable noun. Now coming to the second sentence, iron is a useful metal. Iron. We cannot count iron because iron is sold by weight. Iron is weighed. आयरन को जो है वजन किया जाता है. ठीक है, हम लोग आयरन को काउंट नहीं कर सकते. आयरन इज ए बिग mass. Iron is a big mass, large mass of stone. What is iron? We can define iron. Iron is a large mass of black stone. So we can't count iron. Iron को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन वे आयरन. हम लोग आयरन को वे कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं. इसलिए आयरन क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन. मेटल इज ए काउंटेबल नाउन. वी नो मेटल, धातु जिसको कहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर मेटल्स. तो मेटल को हम लोग काउंट कर सकते हैं. Snowy is his pet dog. Dog, 1 dog, 2 dog, 3 dog, 4 dog. So dog is a countable noun. She has long hair. Hair. We can't count hair. We can't count a mass of hair. अगर बाल का गुच्छा अगर काट, जब हम लोग माने हेयर कटिंग में जाते हैं तो ए मास ऑफ हेयर फॉल, तो वो जो बालों में जो का एक मास होता है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए हेयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन. मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ. मिल्क इट इज सोल्ड बाय लीटर. इसको भी हम लोग वेट करके
वजन करके सेल करते हैं। तो मिल्क चूंकि लिक्विड है इसीलिए इसको ये जो है क्या है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते मिल्क, ठीक है। तो एक ग्लास, एक माने ग्लास इज फिल्ड विथ मिल्क, यू कांट काउंट, ठीक है, वी कैन जस्ट वे इट, इसका हम वजन कर सकते हैं। तो मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। द डोर इज क्लोज, डोर, 1 डोर, 2 डोर, 3 डोर, 4 डोर्स, ठीक है। आई बॉट अ किलो ऑफ सुगर, सुगर वी कैन नॉट काउंट द ग्रेन्स ऑफ सुगर, ओके। सो सुगर इज ए अनकाउंटेबल नाउन। चिल्ड्रेन, children can be counted, children may be 2 children, there may be 3 children, there may be 4 children. Toys, toys can also be counted. So what do we see from all these 8 sentences? That some things are counted and some things cannot be counted. कुछ को हम काउंट कर सकते हैं और कुछ को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो things that can be counted are called countable nouns. Things that can be counted are called countable nouns, and things that cannot be counted are called uncountable nouns, ठीक है। Things that can be counted are called countable nouns, things that cannot be counted are called uncountable nouns। अच्छा, एक चीज और है कि काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है। जितने भी काउंटेबल नाउन्स होगा सबका प्लूरल फॉर्म्स होता है, माने काउंटेबल नाउन्स आर प्लूरल, काउंटेबल नाउन्स आर प्लूरल, कैन बी प्लूरल। जैसे बुक, बुक्स, डॉग, डॉग्स, मेटल, मेटल्स, डोर, डोर्स, चिल्ड्रन, ये प्लूरल है। टॉयज प्लूरल है, इसलिए याद रखिएगा, रिमेंबर काउंटेबल नाउन्स आर प्लूरल और काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म्स। लेकिन बट uncountable nouns are not plural। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होता है वो प्लूरल नहीं होता है, या यू में से दे डोंट हैव प्लूरल। जैसे मिल्क, मिल्क का मिल्क्स नहीं होगा, ठीक है, मिल्क का कोई प्लूरल नहीं होता है। शुगर का कोई प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। आयरन का कोई प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। हेयर का कोई प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो आयरन, हेयर, मिल्क, शुगर, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। तो ये था काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। अब हम एक छोटा सा आपको टास्क देंगे, यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। Now here a passage is given. Now read this passage and pick out the countable and uncountable nouns. This is the passage, a 4-line passage. From this 4-line passage you have to just look for countable and uncountable nouns. Standing on the seashore, the 4 friends were watching the night sky. They looked at the stars in wonder. They felt the soothing breeze and heard the waves roaring in the deep sea. So you have to find out countable nouns and uncountable nouns. Now you pause this video and do the work, and when the work is over then you resume the video. Now I am
giving you the answer. Standing on the seashore, the four friends. Friends are plural, and I have told you that countable nouns have plural forms. So friends are countable nouns. Friends. The four friends were watching the night sky. Sky. Now, somebody can say that sky has also a plural form. Sky has also plural form, skies. So it may be a countable noun, but no, sky is a uncountable noun, because when you look at the sky, you just see an area of the sky, a part of the sky. You just see a part of the sky, and that part of the sky can be measured only. Its area can be determined. You can't, the part of the sky which you look at, that part cannot be counted. मतलब आप आसमान में जो आप जो आसमान में जब आप स्काई की तरफ देखते हैं तो स्काई का एक हिस्सा आपको जो है नजर आता है, और वो जो हिस्सा है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको आप सिर्फ जो है ना, अगर उससे पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उसको एरिया को हम मेजर कर सकते हैं, वो काउंट नहीं किया जा सकता जैसे 1 2 3 4 करके। इसलिए स्काई का प्लूरल स्काई होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है वॉचिंग द नाइट स्काई, इस पैसेज में स्काई जो है अनकाउंटेबल नाउन है। वैसे बहुत सा वर्ड ऐसा भी होता है कि जो काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन भी होता है और काउंटेबल नाउन भी होता है। तो इसके लिए आप यू कैन कंसल्ट ए डिक्शनरी, डिक्शनरी में देखिएगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वहां पर कैपिटल यू लिखा रहेगा, और अगर काउंटेबल नाउन रहेगा तो वहां पर कैपिटल सी लिखा रहेगा। इट विल हेल्प यू इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट whether a noun is countable or uncountable, you can consult a dictionary. So here sky is uncountable noun. Sky. They looked at the stars. Stars. This is plural. So when any noun is plural, it will be countable nouns. So stars are plural noun. They felt the soothing breeze. Breeze means ये sweet air, pleasant air. Okay, pleasant air. So breeze is uncountable noun. Breeze. And heard the waves. Waves are plural, so it is countable nouns. Waves. Roaring in the deep sea. The word deep itself suggests depth. तो sea, in the deep sea, तो सी का भी प्लूरल होता है, सीज। तो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि सी जो है काउंटेबल नाउन है। लेकिन यहां पर जो क्या कहा जाए कि रोरिंग इन द डीप सी, एक डेप्थ, यहां पर जिस सी का बात किया जाए उसके डेप्थ के बारे में यहां बताया, यहां बताया डेप्थ। द डेप्थ इज ओनली मेजर्ड, डेप्थ कैन नॉट बी काउंटेड। इसलिए यहां पर जो सी है ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। हालांकि अगर पैसेज में चूंकि सी दिया हुआ है इसलिए यहां पर ये आपका जो है अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर आपसे पूछे सी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो दोनों ही आंसर सही होगा। सी काउंटेबल भी है एंड अनकाउंटेबल है। सी बिकॉज इसका एक प्लूरल फॉर्म सीज होता है तो उस हिसाब से काउंटेबल भी हो जाएगा। और इसके हिसाब से पैसेज में अगर इस तरह से दिया रहेगा, डिस्क्राइब किया रहेगा, तो दैट विल बी
अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हेयर, जैसे फर्स्ट के लिए हेयर, हेयर, अ मास ऑफ हेयर, इट इज अनकाउंटेबल। लेकिन अगर हम बोले कि 2 हेयर्स आर लाइंग ऑन योर चीक, आपका 2 माने गाल के ऊपर 2 बाल जो है माने पड़ा हुआ है, 2 बाल, 2 बाल, अगर 2 लंबा 2 लॉन्ग हेयर्स आर फॉलोइंग आर लाइंग ऑन माई चीक, 2 लॉन्ग हेयर्स आर लाइंग ऑन माई चीक, तो उस वक्त हेयर क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मास ऑफ हेयर, ठीक है, या जैसा हम करेंगे ही हैज ब्लैक हेयर, ही हैज ब्लैक हेयर, या हिज हेयर इज ब्लैक, तो हेयर इस वक्त अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। लेकिन 2 लॉन्ग हेयर्स आर फॉलिंग ऑन योर चीक या ऑन माई चीक, तो उस वक्त काउंटेबल नाउन्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्पेसिस लिखा हुआ काउंटेबल नाउन्स, यहाँ पर फ्रेंड, स्टार्स, वेव्स, और अनकाउंटेबल नाउन्स में स्काई, ब्रिज और सी हो गया। तो और भी बहुत सारे माने काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स तो इजी है समझना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जिसका प्लूरल होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स में जैसे कि जितना भी लिक्विड फॉर्म होता है, जैसे ब्लड, मिल्क, ओके, वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। खाने का जितना सामान है जिसको हम माने वजन के माने दैट इज विच वी बाई इन ए किलो और विच वी सेल इन ए किलो, जिसे हमको किलो वजन में हम बेचते हैं या माने खरीदते हैं, जैसे राइस, वीट, फ्लोर, आटा, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है आपका, ये क्या बोलता है कि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। राइस, वीट, फ्लोर, सीरियल्स, ग्रेन्स, ठीक है, जितना भी खाने का सामान है, मीट, मटन, बीफ, ठीक है, तो ये सब जो है आपका जो है माने आपका अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल का सीधा फॉर्मूला कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं वो तो काउंटेबल नाउन्स हो गया, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन में चला जाएगा। बस इतना याद रखना है। काउंटेबल नाउन्स का माने प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं। जैसे कि हेयर केस में हेयर, हेयर्स, ठीक है। तो all this was about countable nouns and uncountable nouns. I hope you have got the lesson very well. Thank you very much.